And we read from verse 11. और इसकी 11वीं आयत से पढ़ेंगे। Actually, we'll start reading from verse 3 and we will read the whole story. दरअसल हम 3री आयत से पढ़ेंगे और इस पूरी कहानी को पढ़ेंगे। I will not be long. मैं ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगा। I think the Lord has already spoken to us. मैं समझता हूँ खुदा तो हमसे पहले ही बात कर चुका है। There's a very deep message about receiving and giving it. कुछ लेने और आगे बांटने के बारे में एक गहरा पैगाम है। And the Bible says, freely you have received and freely give. कलाम में लिखा है तुमने मुफ्त पाया मुफ्त देना। It is very mandatory for us to, whatever we receive freely, to give it freely to others. हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो कुछ हमें मुफ्त मिला है हम उसे मुफ्त ही दें। And I believe that God has spoken to each and every one of us already. मैं समझता हूँ खुदा हम इससे हर एक से पहले ही कलाम कर चुका है। But I will read from John chapter 8 verse 3, and it says, Then the scribes and the Pharisees brought him a woman caught in adultery, and when they sat her in the midst, they said to him, Teacher, this woman was caught in adultery in the very act. लिखा 3री आयत में और फकीर और फरीसी एक औरत को लाए जो ज़िना में पकड़ी गई थी और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा है उस्ताद ये औरत ज़िना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। And now Moses in the law commanded us that such should be stoned. What do you say? तो एक में मूसा ने हमको हुक्म दिया कि ऐसी औरतों को संसार करें। बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? They said, testing him that they might have something which to accuse him. But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger as though he did not hear. उन्होंने उसे आजमाने के लिए कहा ताकि उस पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकालें, मगर यीशु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगा। So when they continued asking him, he raised himself up and said to them, He who is without sin among you, let him throw the stone first at her. जब उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले उसके पत्थर मारे। And again he stooped down and wrote on the ground, and those who heard it, convicted in their conscience, went out one by one, began with the oldest even to the last. और फिर झुककर जमीन को पर उंगली से लिखने लगा। वो ये सुनकर बड़ों से छोटों तक एक-एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और औरत वहां बीच में रह गई। When Jesus had raised himself and saw no one but the woman, and said to her, Woman, are those accusers of yours, has no one condemned you? यीशु ने सीधे होकर उससे कहा है औरत ये लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? And she said, No one, Lord. Jesus said to her, Neither do I condemn you. Go and sin no more. उसने कहा है खुदावंद किसी ने नहीं। यीशु ने कहा मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह न करना। And this is a very familiar story to each and every one of us. और ये बड़ी सादा कहानी है जिससे हम सब वाकिफ हैं। And we all want to be like the woman who nobody casted the stone at. और हम भी चाहते हैं उस औरत की तरह हो कि कोई भी शख्स हम पर पत्थर ना मारे। We don't want to be punished. हम भी चाहते हैं हमें सजा मिले। The woman knew the punishment of being caught in that adultery act. वो औरत उस गुनाह की वजह से अपनी सजा के बारे में जानती थी। That woman was sitting on the ground knowing that she will be stoned next. और वो जमीन पर बैठी थी और वो ये सोच रही थी कि अब अगले लम्हे इसको पत्थर मारे जाएंगे। And I think she was counting the stones around her. और हो सकता है वो चारों तरफ घूम के गिन रही हो कि कितने लोगों के पास पत्थर हैं। And maybe she was expecting, maybe that one will throw the stone at me first. और हो सकता है वो सोच रही हो किसी शख्स के बारे में कि हो सकता है ये वाला आदमी मुझे सबसे पहले पत्थर मारेगा। And I think she looked upon Jesus. और वो यीशु मसीह को देख रही थी। And she knew for a fact that he was going to be the one that's going to kill her. और वो जानती थी कि यही वो शख्स है जो फैसला करेगा मेरी मौत का। Because surely these people brought me here to their teacher to tell them what to do so they can complete what the Bible says. और वो जानती थी कि ये उस्ताद के पास ले आए हैं जिससे ये कह रहे हैं कि तू बता कि इसके बारे में क्या करना है। And she was counting down the stones. और वो उन पत्थरों को देख रही थी। But the master had another plan. लेकिन जो उस्ताद था उसके लिए कोई और मंसूबा था। And teacher took out a mirror from his pocket and put it in front of the ground. और उसने जो शीशा था उनकी जिंदगियों का निकाला जेब से और जमीन पर रख दिया। I believe Bible doesn't tell us what Jesus was writing on the ground. बाइबल मुकद्दस में ये नहीं बताती कि यीशु मसीह जमीन पर क्या लिख रहे थे झुककर। And I believe Jesus was writing the word liar, the word
thief and the word robber and stealer and all kinds of sin names on the ground. हो सकता है जमीन पर यीशु मसीह गुनाहों के नाम लिख रहे हों और वो हर शख्स पढ़ रहा हो अपने बारे में, And because something convicted them in their hearts. क्योंकि कोई चीज थी जिसने उनके दिलों के अंदर चोट लगाई और उनके दिलों पर असर हुआ. And something happened when they read those things. The Bible does not tell us what Jesus was writing on the ground. बाइबल हमें ये तो नहीं बताती यीशु मसीह जमीन पे क्या लिख रहे थे, But something that Jesus wrote on the ground did something. लेकिन जो कुछ यीशु ने जमीन पर लिखा उसने कुछ बदल डाला, कुछ तब्दील किया. And what Jesus said changed them. और फिर यीशु मसीह ने जब उनसे कहा That he who is without sin among you, let him throw the stone at her first. फिर यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जो तुम्हें बेगुनाह है, जिसने कभी गुनाह नहीं किया, वो सबसे पहले पत्थर मारे. And the thing I always thought was, Jesus asked them that any one of you who has never committed sin in their life, you throw the stone. But the Bible doesn't say it. The Bible says the one who does not have sin in his life right now can throw the stone. मैं सोचा करता था कि यीशु मसीह ये कह रहे थे कि जो तुम में से जिसने कभी गुनाह नहीं किया वो पत्थर मारे, लेकिन बाइबल ये नहीं कहती, बल्कि ये कहती है कि जिसकी जिंदगी में गुनाह नहीं है वो पत्थर मारे. Jesus did not say the one who has never committed sin. Jesus says the one who is without sin among you. यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि जिसने कभी गुनाह नहीं किया, बल्कि ये कहा कि जो इस वक्त तुम्हारे बीच में बेगुनाह है वो पत्थर मारे. And there was no one. और कोई एक भी नहीं था. But Jesus told the woman something else in verse 11. लेकिन 11वीं आयत में खुदा यीशु मसीह ने उस औरत से एक बात की. Jesus said, neither do I condemn you. यीशु ने कहा मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता. And he said, you go and sin no more. यीशु ने कहा जा और फिर गुनाह ना करना. And that is the message that I have in my heart today. और यही वो कलाम है जो आज मेरे दिल में रखा है खुदा. And this is not really a message, and I think it's more of a single verse and line that can impact us today. असल में ये कोई पैगाम तो नहीं, लेकिन ये एक लाइन है, ये एक बात है जो आपकी जिंदगियों पर असर कर सकती है. If you want to fix any problem of your life, अगर आप अपनी जिंदगी में किसी मुश्किल को डील कर रहे हैं, first fix the sin problem. लेकिन सबसे पहले आप गुनाह के बारे में सोचिए जो आपकी जिंदगी में. First think about, is there any sin left in my life? सबसे पहले ये सोचिए कि मेरी जिंदगी में कोई गुनाह तो नहीं है. I do not have any control over anything else in my life. मेरा अपनी जिंदगी में किसी भी सिचुएशन पर कोई कंट्रोल नहीं है, except my sin. सिर्फ मेरे अपने गुनाह के बारे If I can में. fix my sin problem, which I can through Jesus Christ, अगर मैं अपने गुनाह का मसला यीशु मसीह की मदद से हल कर लूं, I can fix everything else. तो फिर सारी बाकी बातें भी ठीक हो सकती हैं. God will fix everything else. क्योंकि खुदा ही मेरे लिए वो सब ठीक कर देगा. See, we do not want to get serious about our sin problem. कई दफा हम अपने गुनाहों के बारे में संजीदा होकर नहीं सोचते, We want to fix our family problems first. क्योंकि हम सबसे पहले अपने खानदान के मसले ठीक करना We want मांगते to fix our financial problems. हैं. कई दफा हम अपनी माली मुश्किलात को ठीक करना We चाहते हैं. want to fix everybody else's problems. कई दफा हम दूसरों के मसलों को ठीक करना मांगते But हैं. the biggest problem is the sin problem. लेकिन सबसे बड़ा मसला गुनाह का है. You can go to hell with money and you can go to heaven broke. आप जहन्नम में पैसों के साथ भी जा सकते हैं, पैसों के बगैर भी जा सकते हैं. But you can go to heaven having no money like Lazarus. लेकिन अगर आप आसमान पर जाएंगे तो हो सकता है आपके पास कोई भी पैसे ना हो. You can go to heaven with family problems. आप खानदान के मसलों के साथ भी आसमान की बादशाही में जा सकते हैं. You can go to heaven with sickness. आप बीमारी के साथ भी आसमान की You बादशाही can में. go to heaven without an eye. आप एक आंख के बगैर भी आसमान की बादशाही You में जा can सकते go to heaven without a feet. हैं. हो सकता है आपके पाँव ना हो और आप आसमान की बादशाही You में can go जाएं. to heaven in a wheelchair. आप व्हीलचेयर पर बैठे भी आसमान की बादशाही में जा सकते हैं. But you cannot go to heaven with a sin problem. लेकिन आप गुनाह लेकर आसमान की बादशाही में नहीं जा सकते. So you tell me which is a bigger problem. Family problem. Every other problem will stay on this earth and you can still go to heaven. But a sin problem is the only problem that will take you to hell with it. और आप सोच सकते हैं कि आपके कौन से मसाइल हैं जिनको आप ठीक करें, लेकिन याद रखिए हर मसला जमीन पर जो आपका है इसके साथ आप आसमान पर जा सकते हैं सिवाय गुनाह के. Because sin is a problem that will take you with it. क्योंकि गुनाह ही एक ऐसी चीज है जो आपको अपने साथ ही ले जाता है. And it will never leave you until you leave it. और ये आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा जब तक कि आप इसको ना खुद छोड़ें. Sin will never tell you to leave it. लेकिन और गुनाह आपको कभी कहेगा भी नहीं कि मुझे छोड़ दे. The world will not tell you to leave sinning.
दुनिया आपको कभी नहीं कहेगी आप गुनाह छोड़ दें। Only Jesus would tell you sin no more. सिर्फ यीशु मसीह आपसे कहेगा गुनाह ना करना। Religion will not tell you to sin no more. मजहब आपको कभी नहीं कहेगा गुनाह ना करना। Religion wanted to kill that woman that day, मजहब तो उस दिन उस औरत को मार देना चाहता था, but Jesus wanted to save a life. लेकिन यीशु मसीह जिंदगी को बचाना चाहते थे। Because if that woman was stoned, she would have definitely gone to hell. क्योंकि अगर वो उस दिन उस औरत को पत्थर मार के मार दिया जाता तो वो जहन्नम में जाती, And the punishment wouldn't have ended. और उसकी जो सजा है कभी भी खत्म ना होती। But one simple act changed her destiny. लेकिन एक छोटे से काम ने उसकी मंजिल ही बदल दी। Jesus did not tell this woman, go do a big thing, go burn thousands of lambs and go burn thousands of bulls and go do so many sacrifices. He simply told her, go and sin no more. और यीशु मसीह ने उसको कोई बड़ा काम करने को नहीं भेज दिया कि अब तुझे हजारों कुर्बानियां चढ़ानी है, बहुत सा पैसा लगाना है, बल्कि छोटी सी एक बात की कि जा और अब गुनाह ना करना। And I tell you the same thing. और मैं भी आज आपको यही कहना चाहता हूँ। I know we have problems. मैं जानता हूँ हम सबके मसाइल हैं। I know I have problems. मैं जानता हूँ मेरी मुश्किलात हैं। But I only have one problem. लेकिन असल में मेरा एक ही मसला है। And that is sin problem. और वो है गुनाह। Because Jesus said everything else He'll take care of it. क्योंकि यीशु ने कहा था बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। Simply one thing He has told us to do is that is repenting. एक ही काम उसने हमें करने को कहा है वो है तौबा। He didn't tell you go fix your children. उसने ये नहीं कहा जाओ और अपने बच्चों की ठीक करो जाकर बच्चों को। He didn't tell you go make more money and then you'll be happier. और उसने ये भी नहीं कहा कि जाकर अब और ज्यादा पैसे कमाओ ताकि तुम खुश रह सको। And He didn't say that'll fix your problems. और उसने ये नहीं कहा जाकर अपने हालात को ठीक करो। He simply said repenting will fix your problems. क्योंकि तौबा है जो हमारे सारे मसलों को ठीक कर सकती है। And if you can open Luke chapter 13 with me, अगर आप लूका की इंजील का 13वां बाब मेरे साथ खोलें, and we will read from the first 3 verses. और इसकी हम पहली 3 आयतों को पढ़ते हैं। Luke 13 verse 1 says, and they were present at that season some who told him about the Galileans whose blood Pilate had mingled with their sacrifices. And Jesus answered to them, do you suppose that these Galileans were worse sinners than all other Galileans because they suffered such thing? I tell you no, but unless you repent, will all likewise perish. उस वक्त बाद लोग हाजिर थे जिन्होंने उसे उन गलीलियों की खबर दी जिनका खून पिलातुस ने उनके ज़बीहों के साथ मिलाया था। उसने जवाब में उनसे कहा, इन गलीलियों ने ऐसा दुख पाया, क्या वो इसलिए तुम्हारी दानिश में और सब गलीलियों से ज्यादा गुनहगार थे? मैं तुमसे कहता हूं नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा न करोगे सब इसी तरह हलाक होगे। Jesus says, those Galileans who died were not worse sinners. यीशु मसीह ने कहा ये जो गलीली लोग मारे गए थे, कत्ल हुए थे, ये कोई ज्यादा गुनहगार नहीं थे। But unless you repent, likewise will perish. लेकिन अगर तुम भी तौबा न करोगे इसी तरह हलाक होगे। Jesus did not say you will die, but He said you will be perished. Likewise. यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम मरोगे, बल्कि यीशु मसीह ने कहा तुम हलाक होगे ऐसे ही। If we do not repent of our sins and we die, अगर हम अपने गुनाहों से तौबा किए बगैर मर जाएं, then we don't die, we perish. फिर हम मरते नहीं बल्कि हम हलाक होते हैं। And being perished is worse than dying. और जो हलाक होना है वो मरने से ज्यादा खतरनाक है। Because death is a comma for the people who believe in Jesus. क्योंकि ये जो मौत है ये तो एक मुश्तरक चीज है उनके लिए भी जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। Because we continue life after death. क्योंकि हमारी जिंदगी मौत के बाद भी जारी रहती है। But for the people who don't repent of their sins, death, that's it. After that, the punishment starts. लेकिन जो गुनहगार गुनाह में मर जाते हैं वो तो मरते ही अपनी सजा के अंदर चले जाते हैं और उनकी सजा शुरू हो जाती है। And without telling you much, I simply want to bring the focus back on one thing, and that is how many problems do we really have? मैं बहुत ज्यादा बातें लंबी करके नहीं बताना चाहता, बल्कि मैं वापस अपने पॉइंट पर आना चाहता हूं कि कितने मसले हैं जिनको आप ठीक करना चाह रहे हैं। What do you think is your biggest problem? आप क्या सोचते हैं आपका सबसे बड़ा जिंदगी का मसला क्या है? Do you ever consider your own sin? क्या आपने कभी अपने गुनाहों पर गौर किया? I tell you, I haven't. मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने भी नहीं किया। And I never really thought we need to worry really about it, because I always thought sin will take care of itself. We'll overcome it when we overcome it. मैं सोचता था कि मुझे बाकी सारे काम करने चाहिए, गुनाह अपने वक्त पर खुद ही जिंदगी से जाता रहेगा।
There's no time where sin will disappear from your life. कोई भी वक्त ऐसा नहीं है जब गुनाह आपकी जिंदगी से गायब हो जाएगा. If you are a sinner without being married, you will be a sinner with marriage. अगर आप शादी से पहले गुनहगार हैं तो आप शादी के बाद भी गुनहगार ही होंगे. A lot of time for guys it's said, marry him, it'll fix him. और कई लोगों का ख्याल है कि कुछ मसलों को शादियां ठीक कर लेती हैं. Bible says only Jesus can fix people. कलाम कहता है सिर्फ यीशु मसीह है जो लोगों के मसलों को हल कर सकता है. No marriage has fixed anybody. किसी भी जिंदगी का मसला शादी ने हल नहीं किया कभी. No rehab has fixed anybody who does not want to be fixed. और हमें से कोई भी ऐसा नहीं जो ये ना चाहता हमारा मसला हल हो जाए. No rehab has fixed anybody who does not want to be fixed. हमें can you repeat? कोई अदारा भी आपको ठीक नहीं कर सकता जब तक आप खुद ठीक ना होना चाहे. No institution is there who can fix your problem if you don't want to be. And that brings to the deepest part of this message. Do I want to be changed? और फिर इस पैगाम का एक गहरा हिस्सा शुरू होता है कि क्या मैं वाकई बदल जाना चाहता हूँ? Do I even want to leave sin at this point? क्या वाकई मैं गुनाह छोड़ना चाहता हूँ? Have I fallen in love with sin? या मेरी मोहब्बत गुनाह से है? Am I too far deep into sin where I do not want to leave sin anymore? या मैं गुनाह के साथ इतना गहरा जा चुका हूँ कि अब मैं गुनाह के बगैर जी नहीं सकता. And now I don't feel sin is a bad thing. और अब मैं गुनाह के बारे में सोचता भी नहीं. And I don't think lying is a bad thing anymore. अब मैं नहीं सोचता कि झूठ बोलना कोई बड़ा मसला है. I don't think lust is a bad thing anymore. और बुरी ख्वाहिश कोई बुरी चीज है. Maybe I think anger is not even a sin anymore. मैं सोचता हूँ गुस्सा भी कोई गुनाह नहीं है. And maybe that means that we are too fallen in love with sin. इसका मतलब ये हुआ कि हम गुनाह के साथ इतने गहरे तौर पर चले गए हैं That we don't even feel bad about sin anymore. कि अब हमें गुनाह बुरा ही नहीं लगता. And maybe I'm not saying the best things in the best way, but I simply want to tell you, if we don't leave sin, we will go to hell. हो सकता है मैं जो बातें मैं कर रहा हूँ बहुत जरूरी बातें बहुत अच्छे मेथड से ना कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात आपको जरूर बताना चाहता हूँ कि हम गुनाह के साथ गुनाह आग में जाएंगे. And maybe I'm not screaming at you with these words, but inside I'm screaming these words. हो सकता है आप मुझे देख रहे हो कि मैं जोर लगा के आप पर ये बात नहीं बता रहा, लेकिन दरअसल मैं अपने अंदर आपको इसी तरह ही कह रहा हूँ कि आपको बहुत जोर से कह रहा हूँ गुनाह ना करें. Because this will take you to hell, and hell is not a joke. और ये गुनाह ही आपको आग में ले जाएगा, और आग कोई मजाक नहीं है. And this Bible, this church, everything will be worthless if we go to hell. और ये चर्च, ये बाइबल, ये सब कुछ कोई माने नहीं रखेगा अगर हम आग में ही चले जाएं. And I'm not saying that you should not worry about things that worry you. मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप जिन चीजों के लिए फिक्रमंद हैं उनके लिए फिक्रमंद होना ठीक नहीं है. But maybe that worry has entered your heart because sin is also there. हो सकता है वो जो परेशानी आपके दिल में है वो इसी वजह से वहां है क्योंकि गुनाह भी साथ वहां है. Because when you get rid of sin in your life, worries leave with the sin. क्योंकि जब आप गुनाह से निकल जाते हैं तो गुनाह अपने साथ आपकी फिक्रों को भी आपकी जिंदगी से निकाल देता है. Because you replace God with sin. क्योंकि आप खुदा को कुछ करना चाह रहे थे गुनाह के साथ. But when you take sin out of your life and you put God in your life instead, लेकिन जब आप गुनाह को निकाल कर खुदा को उसकी जगह पर दिल में रखते हैं, He will start taking care of your worries. तो फिर वो आपकी फिक्रों की फिक्र करना शुरू कर देता है. And He will start taking care of everything else. और वो बाकी सब चीजों को भी देखना शुरू कर देता है. Because you will simply say, God, I have repented of my sins. क्योंकि आपने सिर्फ ये कहा खुदा मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ. I have left my sin alone. मैंने अपना गुनाह छोड़ दिया. I have left my own life alone. मैंने अपनी जिंदगी को अपने से अलग कर लिया. I simply want to walk with you. मैं चाहता हूँ तेरे साथ चलूं. I don't know how I'm going to fix my family. मुझे नहीं मालूम मैं अपने खानदान के लिए कब कुछ कर पाऊंगा. I don't know how I'm going to fix my financial problems. हो सकता मुझे नहीं मालूम खुदावन मैं अपने माली मुश्किलात को कैसे ठीक But करूंगा. I simply give everything in your hands. लेकिन मैं खुदावन सादगी से सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूँ. And I know when I am sinless, मैं जानता हूँ जब मैं गुनाह के बगैर हूँगा, then you will use me. और फिर खुदावन तू मुझे इस्तेमाल करेगा. Because with sin, God will not use you. क्योंकि गुनाह के साथ खुदा को इस्तेमाल नहीं कर सकता. Actually, God can use you if you have sin in your life. हो सकता है खुदा को इस्तेमाल करे अगर गुनाह हो.
but He will not take you to heaven with you if you have sin in your life. लेकिन ये बात यकीनी है कि वो आपको आसमान की बादशाही में अपने साथ नहीं लेके जाएगा गुनाह के साथ। Because Bible says, Jesus said to a group of people that casted out demons, that did the miracles, that did everything, that I did not know you. क्योंकि खुदावंद ने एक बहुत बड़े ग्रुप को ये बात कही जिन्होंने यीशु नाम में बदरूहों को निकाला था, मौजज़े किए थे, उसके नाम में नबूवत की थी, लेकिन यीशु ने कहा था मेरी तुमसे कभी वाकफियत नहीं। This means sin will allow God to do things in your life, but that will never allow God to truly use you. इसका मतलब है कि गुनाह के साथ हो सकता है खुदा आपसे कुछ काम तो ले ले या आप खुदा के जरिए कुछ काम तो कर लें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि गुनाह रखते हुए आप आसमान की बादशाही में चले जाएं। Because until you have truly tried God without sin, you don't really know how wonderful God is. क्योंकि अगर आप गुनाह छोड़कर खुदा का तजुर्बा नहीं करेंगे, आपको मालूम नहीं पड़ेगा खुदा कैसा है। You don't know the depths of God until you have left sin. जब तक आप गुनाह से अलग नहीं अपने आप को करेंगे, आप खुदा की गहराई को नहीं समझ सकते। Because He will never let you come close to Him unless you are sinless. जब तक आप गुनाह से अलग नहीं होंगे, खुदावंद आपको अपने बहुत करीब आने ही नहीं देगा। And when you are without sin and you come in His presence, जब आप गुनाह के बगैर उसकी हजूरी में आएंगे, it's a different presence. ये तो फिर आप खुदा की एक फर्क हजूरी को It's going to be a different love. फिर वो एक अलग सा प्यार उसके साथ होगा, It's going to be a different joy. फिर एक अलग सी खुशी भी होगी, It's going to be a different attitude. फिर रवैया भी बिल्कुल बदल It's जाएगा, going to be a different smile. फिर फर्क किस्म की मुस्कुराहट होगी, It's going to be a different voice. फिर आपकी आवाज बदल जाएगी, And then God will truly be glorified in your life. फिर खुदा के नाम को आपकी जिंदगी से जलाल मिलेगा। And I'm not saying these things that I have accomplished them, मैं इसलिए नहीं आपको ये बातें कह रहा कि मैंने ये सारी चीजें अपनी जिंदगी में हासिल कर ली हैं, but I'm telling you these things because that's the direction God has put me in. क्योंकि मैंने आपको ये बात इसलिए बताई है कि इस काम में खुदा ने मुझे मेरे लिए डाला है। We must be saints of the living God. हमारे पास भी वही मोहब्बत करने वाला खुदा है। We must be the saints of the living God. हमें खुदा के लिए खुदा के लोग होना है, ऐसे खुदा के। We must be sinless. हमें गुनाह के बगैर जीना है। We must be holy in our attire and in our heart. हमें अपने दिखावे में और अपने दिल में पाक बनना है। We must be holy from the inside. हमें अपने अंदर से पाक होना है। We must be holy from the outside. हमें बाहर से पाक होना है। We must be holy in here. हमें अपने ज़हन में पाक होना है। We must be holy in our eyes. अपनी आंखों में पाक होना है। We must be holy in our ears. हमें अपने कानों में पाक होना है। And every sin that is in your life will come to your mind when I said those things. और जब मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ तो जो भी गुनाह आपके ज़हन में आया है, Whether it's the holiness of your mind that is lacking, or ear, or eyes, कोई भी वो कमी है जो किसी भी आपके एज़ा के अंदर है, anything that separates you from the holiness of God is a sin. जो भी चीज आपको खुदा से अलग करती है वो गुनाह है। Yes, it can be music, हो सकता है वो म्यूजिक हो, can be movies, हो सकता है वो फिल्में हो, it can be people, हो सकता है वो लोग हो, it can be apps. हो सकता है वो कुछ आपके फोन के अंदर एप्स हो, But there is something that separates you from the love of God. लेकिन कोई चीज है सही जो खुदा की मोहब्बत से आपको जुदा किए हुए है। If you feel some kind of uncertainty in your heart, अगर आप किसी तरह की बेचैनी अपने दिल में महसूस करते I हैं, can guarantee you it's a sin. तो फिर मैं आपको यकीन से कहता हूँ कोई गुनाह है जिंदगी में, Because the presence of sin brings uncertainty in our lives. क्योंकि गुनाह जब दिल में होता है तो बेयकीनी भी दिल में होती है। And that is a very good sign that there is sin. तो ये एक बड़ा बेहतरीन निशान है गुनाह का कि आप एक बेचैनी की कैफियत के अंदर है कि मेरा बनेगा क्या। See, when the people who came to stone this woman, देखिए जो ये लोग जो यहाँ पर पत्थर मारने आए थे, I don't really think Jesus was expecting what happened. मैं नहीं सोचता कि दुनियावी तौर पर कि यीशु मसीह इसकी तवक्को रखते थे कि सुबह सुबह मेरे पास ये आ जाएंगे लेकर। But Jesus did know something, लेकिन खुदावन कुछ बातें जानते थे that each and every one of those men, कि इनमें से हर शख्स जो है, one thing they had in all their hearts, एक चीज इन सब की जिंदगी में है, from the oldest to the last, जो सबसे बड़ा है उससे लेके सबसे छोटे तक एक चीज इन सब में है, they all had sin in their hearts. हर एक के दिल में गुनाह है। So Jesus gave the commandment simply
based on what he saw in the men to the woman. और एक ही चीज खुदावन ने देखी जो उन सब लोगों में और उस औरत के अंदर मौजूद थी, And that was sin. और वो गुनाह था। So next time, इसलिए अगली बार if the woman would have been present and somebody was going to be stoned, अगर वो औरत मौजूद होती और किसी और को पत्थर मारे जाते, that woman would have been the only woman who would be able to throw the stone. तो फिर वो औरत इस लायक होती कि पत्थर मार सकती थी। Actually, if you think about it, अगर आप इस तरह सोचें, Jesus actually told that woman to throw stones at those men. यीशु मसीह ने असल में उस औरत से कहा कि तू इनको पत्थर मार, By sinning no more. लेकिन गुनाह न करना। And that was the only way she could stone those men, by not sinning. और एक ही तरीका था उस औरत के पास उन लोगों को मारने का वापस, अगर वो गुनाह छोड़ दे। And that would be by her testimony at the day of the judgment. और उसकी गवाही होती है अदालत के दिन। Okay, these men with sin came to stone me. और वो बता सकती थी कि ये गुनाह के साथ मुझे पत्थर मारने आए थे, But I left my life of sin, और मैंने अपनी गुनाह की जिंदगी छोड़ दी। and now I will judge hell on them on the day of judgment. अब मैं इन पर हुक्म लगाती हूँ कि ये अब आग में जाएंगे, क्योंकि इन्होंने गुनाह नहीं छोड़ा। And that's how Jesus turned the tables. इसका मतलब है ऐसे ही था जैसे यीशु मसीह ने उनके टेबल बाहर फेंक दिए, Because the woman that they tried to kill क्योंकि जिस औरत को वो मारना चाह रहे थे, will be the same woman in the day of the judgment that will cast judgment on them. क्योंकि यही वो औरत है जो अदालत के दिन इन लोगों पर हुक्म लगाएगी, And what they will suffer will be much worse than stoning. और जो कुछ उन लोगों को भुगतना पड़ेगा वो संसार होने से कहीं बड़ी सजा हो। So if you want to stone the devil, अगर आप चाहते हैं कि आप शैतान को पत्थर मारें, then live a sinless life. तो फिर आप गुनाह के बगैर जिंदगी जिए। Simply sin no more. सादा सी बात है, गुनाह ना करें। And it doesn't get any simpler than that. इससे सादगी से इसको और का नहीं कहा जा सकता। Simply sin no more. बस सादगी के है गुनाह ना करना। And every single problem that is in your life will disappear. तो आप अगर ऐसा करेंगे कि आप गुनाह से लड़ने वाले बन जाएंगे और गुनाह छोड़ देंगे, आपकी जिंदगी का हर मसला खुदा हल कर देगा। And that's all I have to say. यही कुछ है जो आज मेरे पास आपको बताने के लिए था। I want to give the rest of the meeting to Pastor G. और अब मैं इबादत का अगला हिस्सा पास्टर जी के सुपुर्द करता हूँ। आइए दुआ करते हैं इस कलाम के लिए जो ये मेरे लिए कलाम है और आपके लिए भी है। आज के लिए, आज की खुराक के लिए ये बहुत है। खुदा उनके बंदा के लिए, ब्रदर सैमुअल के लिए हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं जिसकी जिंदगी में खुदा ने इस कलाम को रखा है। हालेलुया।